Hey guys, welcome to Trial Tutorials. This is Krisha and I welcome you to Chapter 3, Lesson 3 of SYJC 12th French. ये लेसन भी बहुत छोटा है, सिर्फ एक टॉपिक बड़ा है, बाकी के दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा छोटे हैं. So ये टॉपिक भी आई होप आधा घंटा या लेस देन आधा घंटा में कवर हो जाएगा, ठीक है? So yeah, let's begin. Okay guys, let's come to mon cher equilibre, which means balanced diet. Okay, this part is before the communication passage on the page number 76. First we'll go to the red section, which is about the non-vegetarian food, and then we'll move clockwise. Okay. So first आता है viande et poisson, which means meat and fish. So first उसमें है les oeufs, which means eggs. Like पहली बात तो जितने भी pictures है are very self-explanatory, लेकिन this is still very important. That's why I've covered this topic. Okay. So next is le poisson, which means fish. Le viande, which means meat, and le poulet, which means chicken. Okay. Moving clockwise, we come to produits laitiers, which means dairy products. Okay. First is le fromage, my favorite, cheese. Okay. Next is la crème, which means cream. You can also say malai. Next is la puree, which means butter. अभी आते हैं fruits et legumes, which means fruits and vegetables. So उसमें first is la banane, which means banana. La pomme, which means apple. यहाँ पे आप देखना कि सिर्फ fruit नहीं, fruit के पहले जो article use हो रहा है la या फिर la, वो भी आप notice करना, ठीक है? और फिर next comes le citron, which means lemon. Les raisins, which means grapes. La fraise, which means strawberry. La tomate, which means tomato. La chou flower means cauliflower. La chou means cabbage. Okay. Next is la oignon, which means onion, and la pomme de terre, which means potato. Okay. Now let's move to cereals. So उसमें है la maize, which means the corn, la riz, which means rice, la blé, which means wheat. Okay. So these are the things that you must include in your daily का diet if you want it to be balanced and if you want to stay healthy. अभी हम आ जाते हैं communication part पे. तो सबसे पहले आता है A पे. Cherche la médecin, which means at the doctor's clinic. ठीक है. Emmanuel. Bonjour, monsieur le docteur, le médecin. Bonjour. Vous allez bien? Have you been well? How are you? Basically, okay. Emmanuel says, no. J'ai mal au dos depuis 2 semaines. Which means, no, I have had backache since 2 weeks. Okay. Le médecin. Depuis 2 semaines, et vous ne venez qu'au maintenant. I'm so bad at pronunciation again. I'm sorry. So, वो बोलता है कि since 2 weeks and you're coming now? So, Emmanuel, je viens de rentrer. Je suis allé en mission en Algérie. I have just got back. I was on a mission in Algeria. Okay? Le médecin. Ah, bon. Prenez ces médicaments et reposez-vous bien. Which means, oh really? Take this medicines and rest well. अच्छे से rest करो. Okay? And Emmanuel, merci docteur. Voici ma carte vitale. Which means, thank you doctor. Here's my health insurance card or medical insurance card. And le médecin, merci, au revoir. Okay? अभी हम आते हैं B पे. हाँ, la pharmacie, at the pharmacy. Rashi, bonjour monsieur, le pharmacien. Bonjour mademoiselle. Rashi, je tousse, vous avez quelque chose pour moi. I have cough. What do you have for me? Or you can say, do you have anything for me? And le pharmacien, tennis, ces pastilles sont excellentes contre la toux. Which means here, and she gives some medicine and she says that these are excellent for coughs. Okay? And then Rashi says, merci, je vous dois combien? Thank you, how much do I owe you? And the pharmacian says, 4 euros, s'il vous plaît. Rashi, voila, 4 euros. Merci, au revoir, le pharmacien, au revoir, bonne journée. Okay? I need not say, अभी आपको पता चल गया होगा, au revoir मतलब bye, bonne journée means have a nice day. Okay? अभी हम आते हैं C पे, como se exprimer, which means if you want to express yourself, तो आप कैसे express करोगे? So इसमें दो situations दी हुई है. First is Natasha, second is Ron. Okay? First आता है Natasha पे. Natasha est triste, elle n'a aimé rien dans la vie. Elle dit, which means Natasha is sad and nothing is going good in her life. She is not liking anything in her life. So what would she say? Okay. So first is que c'est ennuyeux, which means how boring. Or je en ai marre, which means I'm fed up. I'm done. Okay. And je ne ai pas des chance, which means I'm unlucky. Ça m'énerve, it annoys me, it irritates me. या फिर bof, which means like bleh, meh, ऐसा कोई expression होता है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है yippee, वैसे ही वहां पे दिया हुआ है bof. Okay? अभी हम आते हैं Ron पे. Okay? So Ron est en pleine forme. Il aime tout dans la vie. Il dit. Ron is in great shape and he likes everything in life. What would he say? Okay? So first is, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. You would get everything. That's super. It's great. या फिर la vie est belle. Vie means life. Okay? Life is beautiful. C'est génial, it's fantastic, it's incredible. Ça me plaît, which means I like it. And yippee, जैसे कि वो वहां पे बॉफ बोल रही थी, ये यहाँ पे बोलता है yippee.
Okay, so that's it for the communication part. Let's move on to pronominal verbs. So let's come to pronominal verbs. ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा ये चैप्टर का. Less verbs pronominals. Pronominal verbs. ठीक है. Pronominal verbs का एक टाइप होता है reflexive verbs. ठीक है. रिफ्लेक्सिव वर्ब्स का मीनिंग क्या है? पहले आप नाम से ही देखो. रिफ्लेक्सिव वर्ब का मीनिंग है वो वर्ब्स जो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सब्जेक्ट पे. तो आपने वन सेल्फ वर्ड सुना था इंग्लिश में, जैसे कि यू, योरसेल्फ, शी, हरसेल्फ, ही, हिमसेल्फ. वैसे आप सेल्फ जहां पढ़ते हो तो मतलब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी पे हम वापस आ रहे हैं. तो वी रिफ्लेक्ट बैक ऑन टू द सब्जेक्ट. So if I say I eat the food myself, I'm drinking the water myself, anything. So I'm reflecting back to myself. मैं वापस जो सब्जेक्ट है उस पर रिफ्लेक्ट करें. तो कुछ जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है हमारे सब्जेक्ट पे उसको बोलता है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स. और हम उसकी बात करेंगे जब हम प्रोनोमिनल वर्ब्स की अभी बात कर रहे हैं. ओके, सो इसके एग्जांपल में उन्होंने लिया हुआ है स लावेर. इसका मीनिंग है टू वॉश वन सेल्फ. मुझे भी एग्जाम्पल थोड़ा अजीब लगा था जब मैं पढ़ रही थी, तब मेरे वक्त भी यही एग्जाम्पल था, स लावेर. तो ना पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको एक कोड ऑफ वर्ड्स बता देती हूँ, कुछ वर्ड्स जो यूज होंगे इसके साथ. जैसे कि पहले मैं सारे वर्ब्स लिख देती हूँ. अगर मैं कोई भी वर्ड स लावेर हो या कोई दूसरा वर्ड हो, अगर वो रिफ्लेक्सिव वर्ब में मैं ले रही हूँ ज के साथ, तो मुझे म यूज करना पड़ेगा, तो के साथ त यूज करना पड़ेगा, इलालॉन के साथ स यूज करना पड़ेगा, इल्स और एल्स के साथ भी स यूज करना पड़ेगा, नूस के साथ नूस और वूस के साथ वूस. ठीक है. दिस इज नॉट कंप्लीट. ठीक है, आप इसको अभी के लिए ऐसे याद रखो, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट. अगर मैं समझो चलो पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर लेती हूँ. इफ आई वांट टू से गिव टू वॉश वन सेल्फ. ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ आई वॉश माई सेल्फ, तो अभी मैं स लावेर यूज नहीं करूंगी. पहले तो मैं लावेर का जो कॉन्जुगेशन होता है वो करूंगी. लावेर इज नॉर्मल ईआर वर्ब. तो क्या होगा, मैं इसके साथ बोल रही हूँ, रुको. लावे, लावेस, लावे अगेन, लवॉन्स, लावेस, लवेंथ. ठीक है, नॉर्मल जो ईआर वर्ब है वही. ये क्या बोलते हैं, वर्ब है, इरेगुलर नहीं है. ठीक है, तो ज के साथ सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेशन तो निकालूंगी ही, उसके साथ ये जो वर्ड्स है वो यूज करूंगी. ठीक है, जैसे कि ज है, तो ज के साथ मैं स नहीं बोलूंगी, ज स लावेर ऐसे नहीं बोलूंगी. स को रिप्लेस करने के लिए मैं ये वर्ड यूज करूंगी जो मेरे सब्जेक्ट के साथ जा रहा है वो. ठीक है, जैसे कि ज के साथ क्या होता है, मैं. सो ज, मैं, और लावेर का ज के साथ क्या आएगा, जस्ट लावेर. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आई वॉश माई सेल्फ. इसमें आपको स नहीं लिखना है, लावेर भी नहीं लिखना है, इसको कॉन्जुगेट करना है और इसका भी कॉन्जुगेशन होगा. इसका कॉन्जुगेशन क्या है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, अभी अगर मैं तू की बात कर रही हूँ तो तू में क्या आएगा, जाहिर सी बात है ते आएगा, लेकिन इस बारी इसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा लावेस. क्यों, क्योंकि यार वर्ब का भी हम कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, इन या एल होगा तो क्या होगा, सही होगा. ठीक है, इसका सही है, वापस सिर्फ लावे, एस नहीं लगाना है. ठीक है, अभी बात कर रही है नूस की. नूस का और वूस का, नूस वूस ही है, एज इट इज ही है, वही लिख दो भाई. ठीक है, इसका हो जाएगा लवॉन्स, इसका हो जाएगा लवेस. ठीक है, और अभी आएगा इल्स एल्स. ठीक है, इल्स एल्स का है स, और ये आएगा इसका कॉन्जुगेशन लावेंथ. ठीक है, ज म लावे, आई वॉश माई सेल्फ. तू ते तावेस, यू वॉश योर सेल्फ. इल एल से लावे, ही वॉशेस हिमसेल्फ और शी वॉशेस हरसेल्फ. यानी कि अगर मैं ऑन भी यूज कर लो तो वन वॉशेस वन सेल्फ. ठीक है, नूस नूस लवॉन्स, वी वॉश आवरसेल्व्स, वूस वूस लावेस, यू वॉश योरसेल्फ अगेन, इल्स एल्स से लावे, दे वॉश देमसेल्व्स. अभी मैं ये होगा अफर्मेटिव. ठीक है, दिस इज अफर्मेटिव. अब हम बात करते हैं नेगेटिव की. एज ऑलवेज ने और पा आ जाएगा, लेकिन मैं इसमें आपको एक गोल्डन रूल बताना चाहती हूँ. गोल्डन रूल, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो हमारे ये है वो जुड़वा भाई है, वो हमेशा जुड़े रहेंगे, वो बिछड़ेंगे ही नहीं. एक्सेप्शन हमारा पासे कंपोज है. चाहे आप अफर्मेटिव बोलो, नेगेटिव बोलो, फ्यूचर प्रॉश बोलो या फिर पासे रिस्पॉन्स बोलो, हर जगह पे ये जो है जुड़वा भाई है, साथ में ही रहेंगे. यानी कि सेम, म लावे, ते लावे, से लावे, नोज लवॉन्स, वूस लावे, से लावे. और इसके अलावा मैं कोई और अगर लावे के बदले ले लूं वर्ड तो वो भी. बेसिकली मैं जो बोल रही हूँ ये दो जो रहेंगे ना जुड़वा, हमेशा साथ रहेंगे. अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि मैं इसके बीच में ये डालूं, इसके बीच में ये डालूं, क्या करूं, मैं आइलैंड वर्ब फ्यूचर प्रॉश का यहाँ पे रखूं या फिर वनीर वर्ब पासे रिस्पॉन्स का वहां पे रखूं, तो उसमें मैं आपको ये गोल्डन रूल बता रही हूँ, लिख देती हूँ. रुको रुको, नेगेटिव को हटा के मैं ये पहले गोल्डन रूल लिखती हूँ. दीज बोथ वर्ड्स आर इनसेपरेबल. एक्सेप्शन भी लिख देती हूँ, एक्सेप्शन इज पासे कंपोजिट. ठीक है, समझ में आई. अभी हम आते हैं नेगेटिव पे. नेगेटिव में क्या होगा, नेपा आ जाएगा. ठीक है, अब मैंने आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर कट बोल दिया है कि ये इनसेपरेबल है, तो आपको क्या लग रहा है नेपा कहाँ आएगा, मतलब नेपा के बीच में जो होगा वो क्या होगा,
सिर्फ एक होगा? ऑफ कोर्स दोनों होंगे। सो अभी तो एकदम इजी है। अगर मुझे बोलना है कि आई नॉट वॉश माई सेल्फ, सिंपल, ज ने मा, सिंपल, ज ने मे लावे पा, खत्म। ने पा के बीच में ये जुड़वा भाइयों को डाल दो, खत्म। रुको मैं आपको बताती हूँ। ज, इसमें ना मैं सारे एग्जांपल नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता दूंगी, ठीक है, तो आप समझ जाना। ओके, फिर भी मैं बाकी के सारे बोल दूंगी वर्बली, मैं लिख नहीं पाऊंगी। अभी मैं यहाँ पे ज लिख देती हूँ। ज एग्जाम्पल, ज ने मे लावे, हमारे जुड़वा भाई साथ में ही लिख दिया मैंने, पा, ज ना मे लावे पा, ये दोनों साथ में है हमारे, ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अभी ऑब्वियसली अगर मैं इसका नेगेटिव करूंगी, तू न ते लावे स्पा, इन एल ने से लावे पा, नूस ने नूस लावोन स्पा, वूस ने वूस लावे स्पा, इल्स एल्स ने स लावे पा, सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पे हर जगह पे ने आ जाएगा, यहाँ पे हर जगह पे पा आ जाएगा, ये सब साथ में ही रहेंगे। अभी हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। लाइक यू अस्यूम देयर आर टू वेज यू कैन डू इंट्रोगेटिव, एसक वाला और नॉर्मल वाला, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है एसक वाला, मैं दोनों वे का लिख दूंगी, एस क, फिर हमारा क्या है, ज में लावे। ज वाला एग्जांपल बार बार लिख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये समझ में ना आए, प्लीज क्लैरिटी रखना। ऐसा क है, सब कुछ सेम ही रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ऐसा क ज में लावे क्वेश्चन मार्क, ऐसा क तू ते लावे क्वेश्चन मार्क, ऐसा क दिस 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 क्वेश्चन मार्क। ऐसा क इज तो वेरी सिंपल, ठीक है। पर ऐसा क में ये हाइफन डालना और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क डालना भूलना मत, ठीक है। इन केस आपको ऐसा क नहीं जम रहा है, देयर इज अगेन अनदर वे फॉर इंट्रोगेटिव। क्या होगा, इंटरचेंज, एक्सचेंज ऑफ टू वर्ड्स। विच टू वर्ड्स बताती हूँ आपको। एक काम करो, मैंने बहुत ज्यादा श कर दिया है, इस बारी मैं कौन सा लूं, टू ही ले लेती हूँ, रुको। सो फर्स्ट हम ले लेते हैं ते, हमारा जो ये वर्ड्स रहेगा ना, ये सारे वो पहले लिखना है, ठीक है। पहला ये, फिर हमारा जो लावे होगा वो, यहाँ पे लावेस है तो लावेस ही लिखना है, हाइफन डालना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन मार्क डालना भी बहुत जरूरी है। ते लावेस तू, ठीक है। इसमें आपको करना ये है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो लेके जाना है आपको यहीं पे। ते लावेस हाइफन तू, से लावे हाइफन इल एल, नहीं हाइफन बीच में टी भी आएगा क्योंकि जब हमारा ये होता है वॉवल क्रैश तो हम करते हैं ना। रुको, इसका अच्छा एग्जांपल हुआ, लिख देती हूँ मैं। इसका आएगा से लावे टी, फिर इल एल, जो भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इल लिख देती हूँ, चलो, ठीक है। से लावे ते इल, ठीक है, क्योंकि ये वॉवल क्लैश हो रहा है इसलिए ऐसा होता है जब इंट्रोगेटिव की बात करें तब। नोस लावॉन्स नूस, वूस लावेस वूस, स लावेंट इल्स एल्स, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉवल क्लैश नहीं हो रहा है, टी आ रहा है ना बीच में, ठीक है। सो ये था इंट्रोगेटिव। सो लेट्स कम टू इंपरेटिव नाउ। इसमें भी क्या होगा, टू नो वूस कंसिडर होगा, बाकी कुछ कंसिडर नहीं होगा, ये तीन कंसिडर होगा, ठीक है। तो ते नूस वूस, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इंपेरेटिव के भी दो हिस्से हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। तो जब हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो ते फॉर्म वुड बिकम तुआ, यानी कि टी ओ आई, सिर्फ ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं तो इट वुड बी तुआ नूस वूस, ओके। बट अगर हम बात करें नेगेटिव की, इट वुड बी ते नूस वूस नॉर्मली, ठीक है। पहले हम बात है इंपेरेटिव के अफर्मेटिव साइड। अफर्मेटिव मैं लिखती नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो लिख रही हूँ वही अफर्मेटिव है, ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे इसकी टू फॉर्म की, लावेस लावॉन्स लावेस, अगेन बट विद जेड, ठीक है, हाइफन हाइफन हाइफन। अभी आपको इसमें क्या करना है, ते रहने दो, पहले नूस वूस का लिख देते हैं, नूस वूस एक्सक्लेमेशन जो साइन है वो। लावेस का मैंने आपको बोला था कि तुआ आएगा अफर्मेटिव में, तो तुआ कर दो, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं नेगेटिव साइड की, ठीक है। न त लावेस पा, न नूस लावॉन्स पा, ने वूस लावेस पा, ठीक है। ने और पा के बीच में हमारे जुड़वा भाइयों को लगा दिया। अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा एक्सेप्शन पास्ट से कंपोज है तो मैं लिख देती हूँ इंपरेटिव का पॉजिटिव भी, काइंड ऑफ तो लिखी बोल ही सकते हो ना, एंड इंपरेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। एक्सेप्शन पास्ट से कंपोज है एंड इंपरेटिव अफर्मेटिव, ठीक है। तो अभी एक और बार कर लेते हैं इंपरेटिव। लावेस तुआ लावॉन्स नूस लावेस वूस, नेगेटिव साइड न न न पा पा पा, ते लावेस नूस लावॉन्स वूस लावेस। हमारे जुड़वा भाई जो एक्सेप्शन में नहीं आते हैं वो वही तरीके से, ठीक है। ओ भाई, तो इसमें तो इंट्रोगेटिव भी आ गया क्या? इंट्रोगेटिव में भी एक फॉर्म में नहीं आ रहा है लेकिन एक फॉर्म में आ रहा है, छोड़ा, आप समझ गए ना बेसिकली। देखो तो ये भी नहीं लिखना चाहिए, एक्सेप्शन से पास से कंपोज लिखना चाहिए, लेकिन फिर
आई डोंट वांट कंफ्यूज, लिसन, यू नो व्हाट, लेट्स रिमूव दिस, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अभी हम आते हैं फ्यूचर प्रॉश, पासे कंपोजे एंड पासे डिसों पे, ठीक है। आई रब द बोर्ड, वेट। अभी आता है फ्यूचर प्रॉश पे। फ्यूचर प्रॉश यानी कि हमारा आलेर प्लस इन्फिनेटिव। तो इसमें कैसे होता है, आलेर प्लस इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ पे वही होगा आलेर प्लस इन्फिनेटिव, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको कॉन्जुगेट करना है, इसको कॉन्जुगेट नहीं करना है। कि हम बात करेंगे आलेर प्लस इन्फिनेटिव की, तो आलेर का जो कॉन्जुगेशन होगा ऑलरेडी कॉन्जुगेट हो ही रहा है। हम वी कांट यूज स फॉर दिस, वी हैव टू यूज स ओनली फॉर दिस एंड दिस, इसलिए ये तो कॉन्जुगेट होगा ही, पर ये कॉन्जुगेट नहीं होगा। ओके, तो पहले हम आलेर कॉन्जुगेशन याद कर लेते हैं, ठीक है। आलेर का क्या था, ज वैस तू वस इल एल बा, यानी कि इल एल ऑन बा, नूस अलॉन्स बूस आलेस इल्स एल्स वॉन्ट, ठीक है। तो वो करना है, मैंने जो भी बोला, ज तू इलेवन तो लिखना ही है, उसके बाद आलेर का कॉन्जुगेशन लिखना है, उसके बाद क्या आएगा, म त स नूस वूस जो भी आएगा वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमको लावेर 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 हर जगह लिखना है, उसको कॉन्जुगेट नहीं करना है, ठीक है। ज तो बहुत बार कर चुके हैं ना हम, तो अभी चलो इसमें 2 एग्जांपल ले लेती हूँ मेरे को। पहले वो ले लेते हैं ज का क्या आएगा, वैसा आएगा, ठीक है। ज के बाद हमारा आलेर कॉन्जुगेशन आ गया। अभी आएगा हमारा जो ज के साथ जाता है में, ठीक है। और हमारा लावे नहीं आएगा, इस बार लावे हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा, ठीक है। सेम गोस फॉर, चलो अभी क्या ले लेते हैं, नूज वूज तो बहुत ज्यादा इजी है, इल्स एल्स ले लेते हैं, चलो इल्स, इसका आलेर कॉन्जुगेशन क्या है, वॉन्ट, ठीक है। इसका क्या है, स का स ही है, और ये लावेंट नहीं होगा, ये लावेर ही रहेगा, ठीक है। सेम आप समझे ना, सब्जेक्ट तो हमारे वही है, आलेर कॉन्जुगेशन आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे, और ये लावेर ही रहेगा, ओके। मैं आपको बोल रही हूँ बार बार क्योंकि सेम वुड अप्लाई फॉर पासे डिसों, ठीक है। पासे डिसों में क्या है, देखो, वनीर प्लस डे प्लस कॉन्जुगेशन, सॉरी, ओके। सो उसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले मैं वनीर का कॉन्जुगेशन बताती हूँ, पता है, वीएन टी वाला, वेनॉन्स, वेनेज, वाइनेंट विथ डबल एन, ठीक है। पहले मैं क्या करूं, अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने ज और इल्स लिया है, इसमें मैं त और इल ले लेती हूँ, ठीक है। सॉरी तू का वनीर फॉर्म क्या है, वनीर फॉर्म इज वीएंस, फिर डे लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तू के साथ त आएगा, त लगा दो, और हमारा जो इन्फिनेटिव है वो इन्फिनेटिव ही रहेगा, सिंपल। अभी हमने ये और ये ले लिया है, अभी ये ले लेते हैं, नोज वोज बहुत इजी है इसलिए, ठीक है। इल, ओके, कि चलो एल ले लेते हैं, बहुत बार इल ले लिया है तो, ठीक है, एल। इसके बाद हमारा वनीर का कॉन्जुगेशन क्या आएगा इसमें, डी एन, डे डालना जरूरी है। इसका क्या होगा, इसका होगा स, लावेर का लावेर ही रहेगा, इजी, इजंट इट, बहुत इजी है। अभी हम आएंगे पासे कंपोजे में। पासे कंपोजे में थोड़ा सा ट्विस्ट है। पासे कंपोजे हमने 2 टाइप का किया है, अवार और एत्रो, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा प्रोनोमिनल वर्ब्स, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जो हमारे हैं, हमेशा एत्रो वर्ब में ही जाएंगे। हमारा जो भी पास्ट पार्टिसिपल, जो भी पास्ट कंपोज है, जो भी, हमेशा एत्रो वर्ब में ही जाएगा, ठीक है। बुक में भी लिखा है विदाउट एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन, एत्रो वर्ब ही जाएगा हमेशा, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एत्रो ऑलवेज। अब मैं एत्रो का भी कॉन्जुगेशन आपको बता देती हूँ, जस्ट इन केस यू फॉरगॉट। ज स्वीस, टू एस यानी कि ई एस, इल एल का एस्ट ई एस टी, नोस का सॉम्स, वो उसका एथेस जहां पे ई के ऊपर ऐसा साइन आएगा, ठीक है। इल्स एल्स का सॉन्ट, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा कि हम पहले हमारा जो ये है वैसे ही ले लेंगे, ज में तू ते, फिर ये जो हमारा जैसे भी है वैसे ही लेंगे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ओके। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले हम ले लेते हैं ज, ठीक है, ज, ओके। पहले मैंने आपको कहा था जैसे कि मे लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आप पहले पास्ट कंपोजिशन में सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद आप आपका जो भी एत्रो या फिर अवार है उसका कॉन्जुगेशन लिखो प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल कॉन्जुगेशन होता है वो। उसके बाद होता है कि आप अपना पास्ट पार्टिसिपल करो, ठीक है। सो अभी तो मैं यहाँ पे ज में लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे आएगा मेरा जो भी एत्रो वर्ब का होगा वो, ठीक है। दिस इज द वे इट्स रिटन, ओके। सो एत्रो का ज में क्या होगा, स्विस, ठीक है। लावे का क्या होगा, लावे। लेकिन ये, अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, मैं आपको बताया था कि पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, जब मैंने आपको बताया ईआर, लावेर एक नॉर्मल ईआर वर्ब है, ठीक है। मैं आपको बताया था कि लावेर एक नॉर्मल ईआर वर्ब है। तो नॉर्मल ईआर वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल कैसे होता है, ईआर कट होता है और उसके बाद ई
के बाद एक्ड्यू लगाया जाता है, ठीक है, दैट्स द पास्ट पार्टिसिपल। तो ज ने स्विस लावे, ये होगा हमारा एथ्रो, ये होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और ये होगा हमारा जो रिफ्लेक्सिव वर्ब का नेसेसरी होता है वो। तो ज ने स्विस लावे। क्यों मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन पास्ट कंपोजर लिखा है, क्योंकि अगर ये मे यहाँ पे होता, ज स्विस पहले होता और फिर मैं लावे होता, तो ये एक्सेप्शन में आता ही नहीं। पास्ट कंपोजर में हमारे जुड़वा भाई बिछड़ जाते हैं, ज में स्विस लावे आता है, ठीक है। लड़की की बात कर रही हूँ तो एक और ई लगेगा, ठीक है, अगर ज यहाँ पे कोई लड़की है तो एक और ई लगेगा। और ये भी क्यों, मैं आपको बताया था लास्ट लेसन में, एथ्रो वर्ब वाला कभी भी पास्ट कंपोजर होगा तो जो पास्ट पार्टिसिपल है शुड एग्री विद द सब्जेक्ट। रुको पहले बता देती हूँ, सिर्फ एक लड़की है तो एक ई लास्ट में एक्स्ट्रा लगेगा, बहुत सारी लड़कियां हैं तो ई और एस, और अगर मिक्स है, लड़कियां भी है लड़के भी है, तो सिर्फ सादा जो हमारा एस होता है वो, ठीक है। लेकिन ये एग्रीमेंट कब होता है, जब हम एथ्रो वर्ब वाले पास्ट कंपोजर की बात करें। तो यहाँ पे भी एथ्रो वर्ब का पास्ट कंपोजर ही है, तो ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। मैं जो भी पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रही हूँ शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, ओके। तो अगर मैं ये सब्जेक्ट लड़की है तो मैं एक और ई डालती, अभी के लिए मैंने वहीं पे रहने दिया, ठीक है। अभी मैं ले लेती हूँ तू, ठीक है, तू का भी क्या होगा, ते होगा, लेकिन इसका फिर क्या होगा, इसका एथ्रो क्या होगा, ई एस, तो ते और ई एस का वोवेल क्लैश होगा, है ना। तो इसका एक ई जो है हमारा कट जाएगा, वहां पे आ जाएगा हाइफन, ये हमारा ई एस यानी कि हमारा तू का जो एथ्रो कॉन्जुगेशन है वो, उसके बाद हमारा ये कौन सा है, हाँ दिस इज डन, सिंपल लावे। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मार्कर, ओके, सेम थिंग, लड़की होता तो एक और ही लगता, ठीक है। वैसे अगर मैं एल एल बोलूं, चलो एल ही बोल देती हूँ अभी के लिए, एल से फिर एस तो होता है ना हमारा एथ्रो का कॉन्जुगेशन, तो ये ई कट जाएगा, एस फिर एपोस्ट्रोफी आएगा, फिर एस आएगा, फिर जो भी हमारा ये है वो ऐसा, ठीक है, ऐसा है वैसा ही होगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ इसमें भी नेगेटिव की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ने यहाँ पे आएगा और पा यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि ज ने में स्वीस, रुको लिख देते पहले नेगेटिव, ज ने में स्वीस पा लावे, ठीक है, ये इसका नेगेटिव है, ज न में स्वीस पा लावे, ओके, नेपा हमारा यहाँ पे आएगा, ओके। सो या ये था लेस वर्बेस प्रोमिनॉक्स। इसके ही नीचे आपको और भी दिख जाएंगे जो हमारे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होते हैं, साल आवेर के अलावा हमारे और भी जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स है उसका पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा विथ मीनिंग्स बिलो दिस, ओके। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Okay guys, so let's come to learnagation. This is not the first time that we are doing learnagation. हमने पहले भी learnagation किया हुआ है in 11th standard. Learnagation basically is about negative words, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 फॉर्म्स है, neither nor, nowhere और हो गया only, यानी कि nothing but this, okay? इसमें ने तो सब में ही आएगा। आपको याद होगा ने learnagation में हमारा जो नेगेटिव होता है ना, नेपा, if you are not doing something, तो आप नेपा बोलते हो, वो नेपा का जो ने है वो यही से अडेप्ट हो रहा है, ठीक है। जब हम नेगेटिव की बात करें तो ने तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे भी ने है, ने के बाद जो भी ऐड होगा वो पूरा मीनिंग चेंज कर देगा कि नेगेशन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। सो ने, नी हो, तो नीदर नॉर की बात है, ठीक है। अभी आपको पढ़ के कैसा लगेगा कि नीदर का मीनिंग ने होगा और नॉर का मीनिंग नी होगा, और फिर जितने भी नॉर हम बोलते जा रहे हैं नी होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ने को इग्नोर करो। यहाँ पे नीदर का मीनिंग भी नी है और नॉर का मीनिंग भी नी है, इसलिए ने नी हुआ है, लेकिन ने इज हाउ यू यूज इट इन अ सेंटेंस, ठीक है। ने का मीनिंग यहाँ पे नीदर नहीं है, ओके। फिर आता है ने नल पार्ट। नल पार्ट मीन्स नोवेयर, यानी कि कहीं भी नहीं, नॉट एनीवेयर भी वहां पे लिखा हुआ है, इट बेसिकली मीन्स नोवेयर। थर्ड है हमारा न क, जिसका मीनिंग है ओनली या फिर नथिंग बट दिस, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट पे, ने नी, नीदर नॉर, ठीक है। सो माया न पार्ले, नी मराठी नी बंगाली। यहाँ पे वहां पे पोर्टुगीज स्पेनिश ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मैंने उसको पोर्टुगीज इंग्लिश लिखा हुआ था शायद, मैं उसको थोड़ा हमारी लैंग्वेज में लिख दिया है। माया डस नॉट स्पीक मराठी और बंगाली, तो माया न पार्ले नी मराठी नी बंगाली, नीदर मराठी नॉर बंगाली। नी का फर्स्ट मीनिंग है, नी का दूसरा मीनिंग है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि माया डस नॉट स्पीक मराठी भी एंड बंगाली भी, उसको दोनों लैंग्वेजेस नहीं आती, ठीक है। और उसके दूसरा एग्जाम्पल में है आलिया न एमे नी शांतर नी डांसर। आलिया डस नॉट लाइक डांसिंग और सिंगिंग, नीदर डांसिंग नॉर सिंगिंग, ठीक है। ये ने क्योंकि वॉवल क्लैश हो रहा है इसलिए एन अपोस्ट्रोफी है, ठीक है। आलिया नेम है नी शांतर नी डांसर। शांतर मीन्स टू सिंग, डांसर मीन्स टू डांस इन इन्फिनिटिव फॉर्म्स, ठीक है। अभी आता है ने नल पार्ट पे, यानी कि नोवेयर, ओके। अर्जुन एल एस फतीगी, एल ने वा नल पार्ट। यहाँ पे फतीग के बाद एक और ही यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि वो एल है इसीलिए, ओके। तो आप देखो हमेशा कैसे एग्री करता है वर्ड, ठीक है।
और हमारा ने और नलपात यहाँ पे है। आज टुडे एल एस फटीक, फटीक का मीनिंग है टायर्ड। टुडे शी इज टायर्ड, शी इज गोइंग नोवेयर, शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, एल न वा नल पार्ट, ठीक है, वह हमारा आलेर फॉर्म का कॉन्जुगेशन है, ठीक है, जो एल के साथ बैठता है। सो अजूटली एल एस फटीगी, एल ने वा नल पार्ट, ठीक है। और फिर हम आते हैं थर्ड पे न क, जिसका मीनिंग है ओनली या फिर नथिंग बट। एक इसका एग्जांपल है मारिया न आ, यहाँ पे आ का मीनिंग है हमारा जो अवार वर्ब होता है जो एल के साथ जाता है वही है, ठीक है। एल न आ क फ्रेडे, फ्रेडे मीन्स ब्रदर। मारिया हैज ओनली वन ब्रदर, या फिर मारिया हैज नथिंग बट जस्ट वन ब्रदर, ठीक है। सो ओनली, जस्ट, नथिंग बट में ये आता है। ये है अवार फॉर्म, ये हमारा ने, ये हमारा क, दोनों वोवेल क्लैश की वजह से एपोस्ट्रोफी में है, और फ्रेडे यानी कि वन ब्रदर, ठीक है। सो या दैट वाज नेगेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। Coming to the last topic of this lesson, non, we, see. These are responses that you give to questions that are asked for your opinion. If you like something, if you dislike something, basically yes no questions में आपको जो responses देना होता है वही है। Non means no, we means yes, see also means yes. इसका difference मैं आपको बताती हूँ as we move forward. So let's start with non, which means no. So first यहाँ पे दो questions ही होंगे। Whose name is lays fruits? Do you like fruits? Whose name is pass lays fruits? Don't you like fruits? So यही दो क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होगा हमारा पूरा नॉन, वी और सी, ठीक है। सो फर्स्ट इज whose name is lays fruits? नॉन। अगर इसका रिस्पॉन्स नॉन है दैट मीन्स नो, आई डोंट लाइक फ्रूट्स। डू यू लाइक फ्रूट्स? नो, आई डोंट लाइक फ्रूट्स, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, अब इसका नेगेटिव कर लेते हैं। whose name is pass lays fruits? अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको नो बोलना है, डोंट यू लाइक फ्रूट्स, आपको बोलना है नो आई डोंट लाइक फ्रूट्स, तो यू हैव टू अगेन से नो, नो आई डोंट। आप समझ रहे हो क्वेश्चन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर आपको नो बोलना है तो आप नॉन यूज करोगे, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए बोला है क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है कि आप वी बोलोगे या सी बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे केस थोड़ा अलग हो रहा है, जैसे कि अभी वी का मीनिंग है यस, लेकिन टू पॉजिटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पॉजिटिव है अगर आपको उसको यस बोलना है तो आप वी यूज करोगे, ठीक है। whose aim is lays fruits? We, which means yes I do. Do you like fruits? Yes I do like fruits, ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव आंसर, ठीक है। अभी एक और है सी, जिसका मीनिंग इज ऑल्सो यस बट टू नेगेटिव क्वेश्चंस। आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जाए डोंट यू लाइक फ्रूट्स, तो आपको बोलना है यस आई डू लाइक फ्रूट्स, तो आपको बोलना है सी, जिसका मीनिंग यस आई डू ही है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव फर्क पड़ता है, ठीक है। whose name is pass lays fruits? Don't you like fruits? ये मैंने ब्रैकेट किया है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मार्क है। whose name is pass lays fruits? C, जिसका मीन था yes I do. So yeah, like I told you, अगर आपको नो बोलना है तो नेगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं है, आप सीधा नॉन यूज कर दो। अगर आपको पॉजिटिव क्वेश्चन को यस बोलना है तो वी, नेगेटिव क्वेश्चन को यस बोलना है तो सी। So that's it for the lesson 3. If you really like this video, then please like it. If you really find this channel subscribe worthy, then please subscribe. अगर आपको कोई भी comment है, positive, negative, कोई भी feedback, suggestion, anything, please let me know in the comments. And if you have any doubts, please let me know in my Instagram. So yes, thanks for watching. Bye.